Okay, now we will start a new chapter, that is chapter 11. Write down chapter 11. Chapter Rohit Chauhan. Chauhan. Chapter 11, dual nature of radiation. Write down chapter name, dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. Chapter name, dual nature of radiation and matter. Okay, now we will start the chapter. Okay, dual nature of radiation. Radiation have dual nature. Okay, particle nature as well as wave nature. Okay. First, write down electron emission. Main heading electron emission. Electron emission. Electron emission. Okay, write down the heading electron emission. Write down what is emission. The phenomenon of emission of electron. The phenomenon of emission of electron from a metal surface. From a metal surface. From a metal surface. Okay, now heading types of electron emission. Types of electron emission. Number one, thermionic. Thermionic. Thermionic emission. When a metal is heated, when write down when a metal is heated, its free electron gets sufficient thermal energy. Its free electron, its free electron gets sufficient thermal energy, and they can overcome surface barrier, and they can overcome surface barrier.
This method of removal of electron, this method of removal of electron is called thermionic emission या थर्मल emission भी कहते हैं इसको. Number 2, field emission. फील्ड एमिशन और इसका एक और नाम है और कोल्ड कैथोड कोल्ड कैथोड एमिशन. कोल्ड कैथोड एमिशन. राइट डाउन. when a metal surface when a metal surface is subjected when a, when a metal surface is subjected to a very high to a very high electric field to a very high electric field of the order of the order 10 to the power 3 to 10 to the power 10 to the power 3 to 10 to the power 8 volt per meter. 3 to 3 to the 10 to the power 3 to 10 to the power 8 volt per meter electron are emitted from it. Electrons are emitted from it. Okay. Now third point is photoelectric emission. Third point, photoelectric emission. Photoelectric. Photo means photons, means light. It is the process in which it is the process in which electrons are emitted from a metal surface in which electrons are emitted from the metal surface when electromagnetic radiations means light when electromagnetic radiations of sufficient energy electromagnetic radiations of sufficient energy are incident on it. Sufficient energy incident on it. ओके. लाइन चेंज करके उसी में एक आध पॉइंट लिख लो अभी. The emitted electrons are
The emitted electrons are photoelectrons. The emitted electrons, the emitted electrons are photoelectrons. The emitted electrons are photoelectrons. Okay. Number 4, secondary emission. Secondary emission. When fast moving electrons, when fast moving electrons strike a metal surface, when fast moving electrons strike a metal surface, they transfer some of their energy. They transfer some of their energy. They transfer some of their energy to the free electrons of the metal. To the free electrons of the metal. As a result, as a result, the energy of free electrons becomes more. As a result, the energy of free electrons becomes the energy of free electrons become becomes more than the energy required to emit the electron, more than the energy required to emit the electron from the surface, from the surface. अभी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको. इसमें बहुत तरह के होते हैं, ध्यान रखना. लेकिन हमको ये थर्ड वाला पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. थर्ड वाला ही पढ़ना है हमको, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से इसको लिख लेना, और डिटेल्स हमको पढ़ना है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. राइट डाउन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसको छोड़ देना, 4 पॉइंट्स हो गए. उसके बाद ये हमारा मेन जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो है यही है, फोटो एमिशन ही है. फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमको पढ़ना है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही है. राइट डाउन हेडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कुछ लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसको बहुत अच्छे से डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. राइट डाउन when light of suitable frequency, when a light of suitable frequency illuminates a metal surface, when light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface.
electrons are emitted electrons are emitted from the metal surface The phenomenon is called photoelectric effect. The phenomenon is called the phenomenon is called photoelectric effect. The phenomenon is called photoelectric effect. ओके देन अब हम लोग आते हैं डिस्कशन में कि क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आप लोग बहुत डिटेल से समझना, बहुत अच्छे से समझना, है ना। देखना, थोड़ा सा ध्यान दे दो, 10 मिनट का ध्यान दे देना, पूरी आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। जो भी पूरी स्टोरी है इस चैप्टर के पीछे 10 मिनट आप ध्यान से देख लोगे। ध्यान से मुझे आंसर भी करना है, आप लोग रेडी रहना, आंसर भी मुझे देना। मैं जो जो पूछूंगा फटाफट आंसर देना, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, रेडी रेडी और नॉट? ओके ओके, देखना बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी को समझना पहले, उसके बाद देखो बहुत आसान समझना है, क्योंकि ये इसमें एक चैप्टर, एक इक्वेशन है जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। इसमें 3 टर्म आते हैं, 3 टर्म को रिलेट करना, याद रखना पता नहीं क्यों लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिक्कत होती है मुझे, चूंकि जो कंसेप्ट नहीं समझेगा, मेन कंसेप्ट क्या हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो कभी भी इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए उस इक्वेशन को याद करने से पहले ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि कोई ये मेटल है, मान लो इतना थिक मेटल नहीं है, हमने मान लिया थिक मेटल है, और यहाँ से लाइट फॉल करती है, यहाँ पे लाइट फॉल करती है, लाइट इज फॉलिंग, दिस इज अ थिक मेटल एंड रेडिएशन इज इल्यूमिनेटेड, लाइट इज इल्यूमिनेटेड, या इसको हम बोलते हैं रेडिएशन इज फॉलिंग, या सिंपली हम बोलेंगे लाइट इज फॉलिंग। लाइट के पास एनर्जी होती है, आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े हो, E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू, या एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, देखो लाइट क्या है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल पैकेट्स कह सकते हैं। आइंस्टाइन ने बोला कि ये स्मॉल 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 पैकेट से मिलकर बनी हुई है लाइट, और ईच पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, energy packets, each packet is called a photon, and one photon have energy is equals to hc upon lambda, या इसको हम बोलते हैं h nu, hc upon lambda। each photon have energy hc upon lambda, or you can say h nu, where nu is the frequency and lambda is the wavelength। जब यहाँ से फॉल करती है तो क्या होता है कि इसके मेटल्स, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी पॉसिबल होगा कि जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम से बाउंडेड है उतनी कम से कम एनर्जी दे या उससे ज़्यादा एनर्जी दे, तभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होके इधर की तरफ चलेगा। यस, मतलब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप लोग ये देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक सफिशिएंट एनर्जी होगी फोटोन की, तभी इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल, ये सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था, एकदम आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन था, इसको एनर्जी की जरूरत है, लेट अस सपोज 10 जूल, फॉर एग्जांपल इसको 10 जूल की जरूरत है। यहाँ से अगर लाइट फॉल करती है एग्जैक्टली इक्वल टू 10 जूल, तब इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होके आएगा, और इजेक्ट होके वो यहीं पे कहीं रुक जाएगा।
लेकिन अगर ये जो लाइट आ रही है, अगर ये 10 जूल से ऐड करके कुछ बढ़ा दी जाए, 12 जूल कर दी जाए फॉर एग्जांपल, the radiation which is falling on the surface have energy 12 जूल। यहाँ पर 12 जूल होगा, तो बताओ 10 जूल ही इसको चाहिए था, only 10 जूल is required to emit the electron। what about 2 जूल एनर्जी? क्या होगा 2 जूल एनर्जी का? वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अपने साथ ये मोशन करते हुए निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी कितने जूल की? 2 जूल की। वेरी गुड, समझ आ रही बात? यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ एज अ काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जाएगा। ये कंसेप्ट है, समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आइंस्टाइन ने दिया था, है ना? समझ में आ रहा है बाकी लोग? यानी इसके पास जितने, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है कितनी? 10 जूल। ये हमें 10 जूल फिक्स कर दिया हूँ अपने पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एग्जांपल में ये 10 जूल ही हो, ऐसा नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी कि अगर जो लाइट फॉल कर रही है एक पर्टिकुलर, यानी 10 जूल से कम की लाइट होगी, तो इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने का कोई चांस भी नहीं है। तो मतलब ये जो लाइट फॉल कर रही है that have a sufficient energy to emit the electron from the metal surface. yes, तो अगर ये 10 जूल से ऊपर होगी, 10 जूल से अगर ये ऊपर होगी, तभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये 10 + 7 लेके आ रही है, 10 + 7 means 70 joule. The light which is falling on the metal surface have 17 joule energy. What will happen? The 10 joule energy will spend to pluck the electron. Okay? Means यहाँ से तोड़ने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटैच करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10 जूल की रिक्वायरमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये 10 जूल की एनर्जी ऐसे क्या करेगा, वो ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जो बचेगी वो एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी एनर्जी, कितने काइनेटिक एनर्जी कितने जूल होगी बताओ फटाफट? काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, अगर ये 17 आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास होगी कितनी होगी? 7 जूल। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना बहुत मजा आएगा। 7 जूल, वेरी गुड वेरी गुड, 7 जूल। तो ये 7 जूल लेके निकल जा रही है। एक बात हमको बताना, ध्यान से इसमें समझना कि ये 10 जूल आई थी तो कितना लेके जा रही? जब 10 जूल लेके आ रही थी, इसके पास एनर्जी जो थी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वॉज 0। जब इसके पास 11 थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 1। इसके पास 12 हो गई तो इसके पास 2। इसके पास 17 हो गई तो 7। इसके पास 5, 15 जूल फॉल करेगी तो 5। इसी तरीके से अगर 3, 4, 6, 7, मतलब क्या हुआ कि एक मिनिमम एनर्जी से ऊपर अगर ये फॉल कर रही है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है। मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई। एक बात और याद रखना कि अगर यहाँ से जब फॉल कर रही है एनर्जी 17 जूल की फॉल कर रही है, देखना ध्यान से, 17 जूल की एनर्जी फॉल कर रही है लाइट, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिक्वायर्ड है 10 जूल की ही, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन। लेकिन सरफेस के जस्ट इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको अगर 10 जूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे तो ये निकलना का स्टार्ट तो करेगा, लेकिन आगे जैसे बढ़ेगा अपनी लैटिस से कोलाइड करके अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। समझ आई बात? अगर मैं 17 जूल एनर्जी देता हूँ, यहाँ से 17 जूल एनर्जी फॉल करती है, तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल तो रहा होगा, कितने एनर्जी लेके? 7 जूल लेके निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करेगा क्या करेगा? अपने एटलैटिस से कोलाइड करके कुछ एनर्जी का लॉस कर देगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये 7 जूल ना होके कुछ कम होगा। यस और नो? कुछ कम होगी। अब कितनी कम होगी हमको नहीं पता, बस कुछ कम होगी। समझ में आ रहा है ना?
चलो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, फर्स्ट वाले को जो नियर द सरफेस है, जो इंटीरियर में है उसको मैं 2 दे देता हूँ। जब बाहर निकलेंगे तो विच वन विल हैव लोअर एनर्जी, 1 और 2, विच वन विल हैव लोअर एनर्जी, 1 नंबर और 2 नंबर? Video is lagging. No? It's too much clear because I'm getting on my laptop. It's clear. बताओ फटाफट, व्हाट इज द आंसर? किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? ये अंदर वाला है, ये उससे भी अंदर वाला है 2 नंबर। तो जब ये 17 जो लाइट फॉल कर रही होगी, तो जब ये बाहर निकल रहे होंगे, तो बताओ कि किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? 1 नंबर 1 और 2 नंबर 1? बट ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला निकलेगा, बिकॉज इट इज नियरर टू द सरफेस, नियरर टू द सरफेस, तो कम एनर्जी को लॉस करेगा, कम एनर्जी लॉस करेगा, तो जब बाहर निकलेगा तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। समझा बात? अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर और अंदर ले ले, और अंदर ले ले, और अंदर ले ले, अंदर लेते जाए, हाँ, कोलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी को लॉस करता है, बिल्कुल सही बात है। हम अंदर जाते जाए, ये थिक प्लेट है, ये अंदर जाते जाए, और अंदर और अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा होगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जब ये बाहर निकलेंगे तो 7 जूल, ये 17 की फॉल कर रही है अभी भी, तो ये 7 जूल एनर्जी लेके निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आते 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 सरफेस पे क्या करेंगे बेचारे, अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देंगे, यानी वहीं रुक जाएंगे। तो समझ में आया? अपनी एनर्जी को वहां पे लॉस कर देंगे और रुक जाएंगे वहीं पे, बोलेंगे हम इससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारी एनर्जी 0 हो चुकी है। तो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी फॉल करा रहा था, फिक्स्ड अमाउंट मीन्स 17 जूल की एनर्जी फॉल करा रहा था। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो 7 जूल की एनर्जी लेके बाहर निकल रहे थे, और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे? वो इलेक्ट्रॉन जो कि सरफेस पे थे, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा वही 7 जूल की एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। उसके अंदर वाला होगा उससे कुछ कम करेगा, कुछ कम होगा, 7 से कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 कर लेते हैं, उसके अंदर वाला हो जाएगा वो 5, उसके अंदर वाला होगा 4, उसके अंदर वाला होगा 3, उसके अंदर वाला 2, उसके अंदर 1, उसके अंदर वाला 0। यानी कि इसमें हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की हम लाइट फॉल कराते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं दैट हैव 7 जूल मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फिर उससे कम भी है, उससे कम भी है, उससे कम भी है, यानी कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं जिनकी एनर्जी 0 है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो उसमें एनर्जी जो लेवल होगा वो 0 टू, यानी काइनेटिक एनर्जी 0 भी होगी, किसी की उससे ज्यादा भी होगी, किसी की उससे भी ज्यादा होगी, किसी की उससे भी ज्यादा होगी, किसी की उससे भी ज्यादा होगी, और किसी की जो होगी वो हाईएस्ट होगी। यानी कि जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे दैट विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी, तब इतनी बात अगर क्लियर तो कहानी खत्म, चैप्टर खत्म। इतनी बात क्लियर हो गई? ये कहानी है, ये कहानी मैं लिखवा नहीं सकता, बस आपको समझना है इस बात को। चलो क्लियर हो गया इतनी बात, मैं फिर आगे चलता हूँ। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द चैप्टर। देखो, सबसे पहली बात कि जो एनर्जी फॉल कर रही है इसको हम बोलते हैं एनर्जी रेडिएटेड। एनर्जी रेडिएटेड मतलब जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वो फॉल कर रही है इस पे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एच न्यू, क्या बोलेंगे? ये ई बोल लेते हैं, या इसी को हम, मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट, ई बोलेंगे, या इसी को हम एच न्यू कह सकते हैं।
या हम इसको Hc अपॉन लैम्डा भी कह सकते, तीनों एक ही बात है। दैट विल बी इक्वल टू, यानी जो एनर्जी फॉल कर रही है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दो जगह पे। कहाँ कहाँ? एक तो बॉन्ड को ब्रेक करने में और काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कुछ एनर्जी बचेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बचाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दैट विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ कि इन सारे इलेक्ट्रॉन में से डिटैच करना सबसे इजी कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? सबसे इजीली, यानी सबसे ऑन द सरफेस और इंटीरियर टू द सरफेस। वन वाले को इजी होगा। क्यों? जो सरफेस पे होगा वो सबसे इजी होगा, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है। बात मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पे रेडिएशंस को फॉल करते हैं, बहुत ही कम एनर्जी को फॉल कराते हैं और फिर धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ाते हैं, बढ़ाते एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। यानी कि मिनिमम एनर्जी किसकी? फॉलिंग फोटॉन्स। ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की जो मिनिमम एनर्जी है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। जब यह मिनिमम एनर्जी हम देंगे, मींस 10 जूल यहाँ पे देंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तभी तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ फेनोमेनन व्हिच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका नाम आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को W0 से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी W0 से भी डिनोट करते हैं। W0 को हम कभी कभी फाई नॉट भी लिखते हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो W0 लिख लेते हैं, तो वो वर्क फंक्शन में यानी कि टू ब्रेक द बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 जूल के बराबर होगा। और फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2m, जो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे होगी, मिनिमम एनर्जी जो यहाँ पर लॉस हो जाएगी, और जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? हाफ mv मैक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो है वो मिनिमम एनर्जी है। किसकी? मिनिमम एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और यहाँ पे देखना, जितनी एनर्जी यहाँ पे फॉल की वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में चली गई, यानी कि वर्क फंक्शन में चली गई, और प्लस 1/2 mv मैक्स, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले में चली गई। मिनिमम एनर्जी जो होगी वो 0 भी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी में भी 0, 1, 2, 3 में भी, यानी कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम और 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ की एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, जो सरफेस से निकल रहे होंगे, जो उसके इंटीरियर से निकल रहे होंगे उससे कम होगी, जो उसके इंटीरियर से निकल रहे होंगे उससे कम होगी। यानी एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी 0 भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे हम जो मिनिमम एनर्जी का रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको hc अपॉन लैम्डा नॉट के बाद बात करें तो 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, ये लैम्डा के टर्म में है, ये न्यू के टर्म में है, और ये वर्क फंक्शन के, ये भी वर्क फंक्शन है, ये भी वर्क फंक्शन है, ये भी वर्क फंक्शन है। यानी कि वर्क फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि W0 इज इक्वल टू फाई नॉट इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h न्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, एक ही चीजें होती हैं वर्क फंक्शन के लिए Hc अपॉन लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम, बिकॉज इट शुड बी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी और
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बाकी टर्म्स में डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले इतना अभी नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ये इतना नोट कर लो, है ना, ये सब नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतना नोट कर लो, नोट इट डाउन फास्ट। डन। अदर स्टूडेंट्स? ओके, ओके डन। नाउ let us start definitions. Write down threshold. Threshold frequency. Write down definition. Threshold frequency. Threshold frequency means by minimum frequency. इसकी minimum frequency कितनी होनी चाहिए? Write down the minimum value of frequency. The minimum value of frequency. The minimum value of frequency of incidence of incident radiation, of incident radiation below which below which the photoelectric emission stops, below which the photoelectric emission stops. Write down next heading. Threshold wavelength. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ अपोजिट होता है एनर्जी के, इसलिए इसको हम मैक्सिमम बोलेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ the maximum value of wavelength of incident radiation above which
above which the photoelectric emission stops, above which the photoelectric emission stops, the photoelectric emission stops. ओके डन। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा फटाफट लिख लो, है ना, कल लिखाना नहीं पड़ेगा मुझे। कुछ पॉइंट्स हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्या क्या जरूरी है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, उसको लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। Number 1, for a given photosensitive material, for a given photosensitive material, and frequency of incident radiation, and frequency of incident radiation, and frequency of incident radiation, the photoelectric current, बताएंगे क्या होती है photoelectric current? The photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, is directly proportional to the intensity of light, is directly proportional to the intensity of light, is directly proportional to the intensity of light. लाइन चेंज करके उसी में लिखना, पॉइंट मत चेंज करना, उसी पॉइंट में। The saturation current is directly proportional to the saturation current क्या होती है सब बताऊंगा मैं नेक्स्ट डे, अभी याद रखना। The saturation current is directly proportional to the intensity of incident radiation, directly proportional to the intensity of incident radiation. Number 2, for a given photosensitive material, for a given photosensitive material, there exists a certain minimum, there exists a certain minimum cutoff frequency, there exists a certain minimum cut-off frequency, cut-off frequency below which no photoelectrons are emitted, below which no photoelectrons are emitted. Number 3, the photoelectric emission is an instantaneous process. The photoelectric emission is an instantaneous process, मतलब तुरंत होता है।
और इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ेंगे अभी 1-2 दिन और लगेगा। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स भी अपन को पढ़ने हैं, ग्राफ्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है।